In many parts of the world, meat makes up a considerable portion of a typical diet. Red meat is the main source of essential nutrients including iron, protein, vitamin B6, niacin, and vitamin B12, which helps repairing the tissues, muscle building, and developing your immune system as well. There is a strong evidence of need to consume protein and iron-rich diets among Pakistani population to fulfill the requirement of iron deficiency anemia, as some studies revealed the high prevalence of iron deficiency among women and children in Pakistan. Hi, my name is Aisha Iftikhar, and if you're new here, we provide authentic and fact-based knowledge about nutrition, health, lifestyle, and wellness. Eid al-Adha is around the corner. It is one of the holiest occasions in Muslim calendar. For some people, it is all about sacrifice, but for some others, it is all about meat. पूरे साल आप मीट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं, एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पर चाहते या ना चाहते आपको बहुत सा मीट जो है कंज्यूम करना पड़ता है. While enjoying the yummiest food, there is nothing wrong in being a bit careful with your health. In this video, I will be discussing about top 10 dietary guidelines of Eid al-Adha, best cooking methods for meat, and some other recommendations also. So let's get started. Top 10 dietary guidelines for Eid al-Adha. It's a fact that if you're consuming a lot of food, the best way to digest your food is to drink a lot of water. That will keep your stomach healthy. आप लेमनेड भी बना सकते हैं और अपने साथ खाने में लेमनेड को शामिल करें ताकि वो आपको एटलीस्ट मीट के साथ विटामिन सी जाएगा तो मीट की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है. विद दैट आपका स्टमक जो है वो हेल्दी होता है. इफ़ यू कैन ऐड मिंट टू योर लेमनेड, इट्स अ प्लस पॉइंट. Beat the sweet cravings with seasonal fruits. Who does not love having a bowl of meetha on the Eid? It's mandatory, isn't it? ईद के मौक़ों पे बहुत सा मीठा बनाया जाता है, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं and you do not want to miss the opportunity of eating those meethas. But yes, what you can do is you can reduce the consumption of that meetha. The question is how? जैसे ही आप को कोई भी आपको पता है कि आपने खाने के बाद मीठा खाना है या खाने से पहले मीठा खाना है या आप उससे पहले थोड़ा सा सीजनल फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली जो फ्रूट का मीठा होगा वो आपकी क्रेविंग्स को थोड़ा सा कम कर देगा एंड एज अ रिजल्ट आप थोड़ा कम मीठा खा रहे होंगे जो आपके घर में बना है विद लॉट्स ऑफ शुगर एंड विद लॉट्स ऑफ घी. रिमेंबर, व्हेन टेम्पटेशन नॉक्स ऑन योर डोर, फाइंड स्मार्ट वेज टू टैकल इट एंड योर बॉडी इज गोइंग टू थैंक यू फॉर योर डिसीजन लेटर. लेट वेजिटेबल्स कम फर्स्ट. आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हम ईद के मौके पे वेजिटेबल्स का इंटेक क्यों करें, राइट? वेल यस, the best way to control and reduce your appetite is incorporating vegetables with the meal. Vegetables are rich in fiber and are rich in minerals, तो automatically आपको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगती जब आप उसको मील के साथ खा रहे हो. So yes, do add vegetables to your meal. Walk the talk or exercise around the block. Yes, you heard it right. ईद के ऊपर भी आप अपनी एक्टिविटी को प्लीज़ रिड्यूस मत करें. एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक आप दिन में लाजमी करें. एक्सरसाइज पोर्शन कंट्रोल. कंट्रोलिंग योर पोर्शंस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. जब प्लीज़ ईद के ऊपर जब भी आप लोगों को आपके कोई भी सेकंड सर्विंग आपको दी जाती है, इफ़ यू सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, प्लीज़ रिफ्यूज़ द सेकंड सर्विंग. दैट इज़ द मेजर थिंग. द बेस्ट वे you can eat less is to strike a good chat with your closed ones so that you concentrate more towards the conversation and less on the yummy delicacies. Remember, you have to eat to live and not live to eat. Do not make friends with aerated or carbonated beverages. बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो एक हैवी मील के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उनका खाना जो है वो उनको डाइजेस्ट हो सकता है. बट द रियलिटी इज फार बिहाइंड दैट. सॉफ्ट ड्रिंक्स आर रिच इन शुगर, सो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा एक जब मील इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आप बहुत ज़्यादा जब शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं सो ये आपकी बॉडी को वर्सन कर देता है. आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती है. रादर देन गल्पिंग डाउन अ ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, आई सजेस्ट यू टू ड्रिंक समथिंग दैट इज़ हेल्दी फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, लेमनेड और मिंट वाटर, यू कैन हैव देम. बिडिंग फेयरवेल टू द टेबल वंस यू आर डन. द होल आइडिया इज कि आपका पेट भर जाए रादर देन कि आप ज़्यादा खा रहे हैं.
जब आपका पेट भर जाता है, आप उस वक्त डू नॉट स्टफ योर बॉडी विथ एक्स्ट्रा फूड, रिमेंबर दैट। सब लोग अगर बैठे हुए हैं या अगर सब लोग खाना खा रहे हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप तब तक खाना खाते रहें जब तक सारे खा रहे हैं, जो नॉर्मली हम में से मैक्सिमम लोग यही करते हैं अपनी जब भी इवेंट्स होते हैं। सो डू नॉट डू दिस, डू नॉट प्रैक्टिस दिस, दैट इज़ रियली बैड फॉर यू, बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज देता है आपके स्टमक को व्हेन यू आर फुल। So when your brain sends a message that you're full, do not add on calories or do not add food to your body again. Try to use little oil. Try and cook the food in little oil. आप barbecue कर सकते हैं, you can steam the meat, you can pan broil the meat, आप उसको grill कर सकते हैं, but try avoiding deep frying the meat. Do not burn the meat. अगर आप लोग इस ईद पर barbecue कर रहे हैं, कि जो मुझे पता है majority of you will be doing it, do not burn the meat. The charred meat, जिसको हम burnt meat भी कहते हैं, that is highly cancer causing. Small frequent meals also aid in more efficient metabolism as compared to अगर आप कोई meal skip करते हैं या आप ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं, so उससे आपका metabolism decrease हो सकता है, कम हो सकता है। Healthy cooking methods and other recommendations. The healthiest cooking method that a person can actually opt is pan broiling, stewing या baking in the oven. पीपल विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का जिनको इशू है या यूरिक एसिड का इशू जिनको आ रहा है, इवन किडनी पेशेंट्स, वो रेड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट के अंदर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आपने कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि लो फैट आप उनको दे सकते हैं चीज़ें, लो सोडियम की आप उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। सो दीज प्रिकॉशंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशंस। अब सवाल ये बनता है कि कितना लेना चाहिए रेड मीट ऐसे पेशेंट्स को। सो 2 to 3 ounces बेसिकली एक पेशेंट को दे सकते हैं, या एक डिजीज्ड पेशेंट को, डिजीज पर्सन को आप दे सकते हैं जिसको हाइपरटेंशन है या कुछ भी इस तरह का मसला है। अब सवाल ये बनता है कि नो वन नोस के 3 ounce कितना होता है। सो अगर आप हथेली का अपना साइज़ देखते हैं, दिस पाम साइज बेसिकली इज़ 1 portion ऑफ मीट। सो आप ये 3 ounces का, अगर मैं जब आपसे बात कर रही हूँ 2 to 3 ounces, तो आप ये पाम साइज़ होगा। इसकी जो बोटी होगी, इसमें 2 बोटियाँ अगर आती हैं छोटी तो आप 2 बोटियाँ दे सकते हैं, अगर बड़ी एक बोटी आ रही तो आप 1 बोटी दे सकते हैं। सो दैट पाम साइज इज बेसिकली आपका 2 to 3 ounces का आपका एक पोर्शन बनाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कम्स इन आवर माइंड इज़ कि हमें यूज़ करने चाहिए ऑर्गन मीट्स या नहीं। सो आप ऑर्गन मीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही पॉइंट जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है एक चीज़ का। सो अगर किसी को डिजीज़ है या कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, यूरिक एसिड का है, या कोई भी इस तरह का इशू है जिसमें उसको ऑर्गन मीट्स मना किए जाते हैं, सो वो 3 दिन में से, क्योंकि ईद के 3 दिन होते हैं, तो आप 3 दिन में से किसी भी एक दिन थोड़ी सी 1 या 2 बोटी आप ले सकते हैं, ज़्यादा इनटेक आप नहीं करेंगे। सो ये चीज़ हो गई। द अदर पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू रिड्यूस द विजिबल फैट, जिसको हम चर्बी भी कहते हैं, ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होता है, जो सॉलिड टेक्सचर का होता है, उसको आप थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है या हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए हम सॉलिड जो फैट होता है, जिसको हम सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल थोड़ा सा हम कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है कि हम सोडियम कंजम्पशन हमारी डाइट में वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा है और ईद पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि यू डू नॉट हैव टू ऐड पैकेज्ड मसालाज और जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज भी ऐड होती हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम भी ऐड होती है। मीट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ सैलड्स, ताकि आपको फाइबर ऐड हो सके, आपको भूख थोड़ी कम लगे, और अगर उस वेजिटेबल सैलड के ऊपर अगर थोड़ा सा लीमू डाल दें तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग। वाई? बिकॉज लेमन्स आर रिच इन विटामिन सी, और इससे आपका विटामिन सी जो है वो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छा करता है। सो बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप 1-2 ड्रॉप्स अपने खाने के ऊपर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा एनीमिया है, सो यहाँ से थोड़ा बहुत आयरन एब्जॉर्प्शन आपकी अच्छी हो सकती है। ईद इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, एंड इट्स ऑल अबाउट मीट एंड फूड। यू कैन हैव ऑल दोज डिलिशियस फूड जो आपके घर में बन रहे हैं, लेकिन इन जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, डू फॉलो दी सिंपल ट्रिक्स। रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, आपके योगर्ट है, लो फैट योगर्ट है, आपका वेजिटेबल है, योर लेंटिल्स आर योर फ्रेंड। डू नॉट इग्नोर देम। उसको डाइट में, अपनी 3 दिनों की डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपको होलसम और एक वेल बैलेंस्ड डाइट मिल सके।
wish you all a very happy Eid. Stay blessed, stay nourished and stay healthy. Allah Hafiz.